सी व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना पड़ेगा वो देखो। एक मिनट, हाँ, I have to start my pen, start inking. Look at this. હવે આ બે જણા છે. Between these two rational numbers, I was asked to find how many rational numbers? 5 rational numbers. આ બેની વચ્ચેના 5 find કરવાના કીધેલા. So actually there is a rule of n plus 1 that I want to show you. N means there are 5 numbers. તો એ કેવી રીતે કરવાના તે હું તમને બતાવું. 5 એટલે 5 plus 1 means 6. Just a minute, મારો એક કોલ છે. I'll come back again. એક જ મિનિટ. એક મિનિટ, બચ્ચાઓ પાછું છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ રૂલ ઓફ ધીસ. ગઈકાલે મેં શું બતાવેલું હતું? યસ્ટરડે આઈ ટોટ યુ ધીસ વન. શું શીખવાડેલું હતું કે કોઈ બી રેન્ડમ નંબરથી, સપોઝ કે 3/5 એન્ડ 4/5 આર ધેર, તો આને કોઈ બી રેન્ડમ નંબરથી, રેન્ડમ નંબર એટલે કોઈ બી 10 કે કોઈ બી નંબરથી મલ્ટીપ્લાય કરો ઉપર નીચે. કેમ મલ્ટીપ્લાય કરવાનું? બીકોઝ ધીસ ઇઝ 3 એન્ડ ધીસ ઇઝ 4. તો બિટવીન 3 એન્ડ 4 તમારે ફાઇન્ડ કરવાના હોય. 5 નંબર તો નહીં ફાઇન્ડ થાય કે 3 પછી તો ડાયરેક્ટ 4 જ આવે. તો હાઉ કેન વી ફાઇન્ડ ધેટ? તો મેં કાલે એક મેથડ કીધેલી રેન્ડમ નંબર. રેન્ડમ નંબર એટલે 10/10 મલ્ટીપ્લાય કરો. 10/10. So this number will increase like 30 divided by 50 and this will become 40 divided by 50. હવે નીચેનો નંબર તો સેમ જ છે, બરાબર ને કૃષ્ણ? યસ સર. નીચેનો નંબર તો 50 જ છે, તો 50 વાળા જેટલા બી નંબર લખવા હોય એટલા આપણે લખી શકાય. 50 50 50 50. પૃથ્વી તું પણ ધ્યાન આપજે. તો 30 અને 40 ની વચ્ચે કયા કયા નંબર આવે? 31 32 34 33. જે નંબર લખવાય તે લખાય. 39, whatever number you want to write you can write it. તો આ એક વસ્તુ થઈ. This is one thing. પણ મેં તને કીધું પ્રિસાઇઝલી કરવું હોય, એક્ઝેક્ટ કરવું હોય તો એક વસ્તુ એવી છે કે રેન્ડમ નંબરથી મલ્ટીપ્લાય કરવાની બદલે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ મલ્ટીપ્લાઇંગ વિથ એની રેન્ડમ નંબર, you can multiply these numbers like 3/5 and 4/5 with a minimal number. Minimal કેટલો નંબર જોઈએ? મિનિમમ how much, what number we need? તો કે આપણને 5 આપેલા હોય ને અહીંયા 5, તો એને n ગણવાના. n is equal to 5. તો આપણે કેટલાથી મલ્ટીપ્લાય કરવાના? n plus 1. मतलब 5 plus 1 કેટલા થાય? 6. તો આપણે કેટલાથી મલ્ટીપ્લાય કરવાના ઉપર નીચે? આને 6 થી મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાના. એક્ઝેક્ટલી. સો વી નીડ ટુ મલ્ટીપ્લાય ધીસ નંબર બાય 6/6 અને આને પણ 6/6. ઉપર નીચે બંને જગ્યાએ 6 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાના. નાઉ this number will become 6 3s are 18/30, and this number will also become 6 4s are 24. હવે જે નંબર આવશે કેવા આવશે? 30 30 30 30. how many numbers do we need? 5. 5 જોઈએ. 5 થઈ ગયા. ચેક કરો હવે 18 પછીનો કોઈ બી નંબર લખવા લાગ. ચલો 19 20 21 22 and 23. એક્ઝેક્ટલી આ બેની વચ્ચેના 5 નંબર થઈ ગયા. જોઈ લો, થઈ ગયા ને? સો આ બધા રેશનલ નંબર કહેવાય. ધીઝ આર ઓલ રેશનલ નંબર્સ. કોની વચ્ચેના છે? ધીઝ આર ટુ રેશનલ નંબર્સ બિટવીન ધીસ નંબર એન્ડ ધીસ નંબર. આ બેની વચ્ચેના 5 રેશનલ નંબર આપણને જોઈતા હતા, તો આપણને મળી ગયા. વી ગોટ ઇટ. આવડશે ને આવું? કેટલાથી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું? અહીંયા સપોઝ કે 6 આપેલા હોતે, એની 6, તો કેટલાથી મલ્ટીપ્લાય કરતે? 7 plus 1 એટલે 7. તો ઉપર નીચે આપણે 7 7 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું અહીંયા, રાઈટ? અહીંયા સપોઝ કે આપેલું હોય કે 3 નંબર બિટવીન ધીસ ટુ ધીસ, તો 3 plus 1 એટલે 4 થાય. તો ઉપર નીચે 4 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું અહીંયા. ક્લિયર? હવે આ એક મેથડ છે. આની અંદર તું ચેક કરતા નીચે બંને સેમ નંબર છે. યુ કેન ફાઇન્ડ સેમ નંબર ઇન ધ ડિનોમિનેટર એટ બોથ ધીસ પ્લેસીસ. ઇફ યુ કેન સી ધીસ, અહીંયા બંને સેમ નંબર છે, 5 ને 5. બટ એકચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન તમને એક્ઝામમાં પૂછાય તેમાં નીચેના નંબર જુદા પણ હોઈ શકે. ધ ડિનોમિનેટર કેન ઓલ્સો બી ડિફરન્ટ ઇન બોથ ધ સિચ્યુએશન્સ. તો એવો પણ હું સમ મારી રીતે કરાવું. સપોઝ એક નંબર છે 3/5, બીજો નંબર છે સે ફોર એક્ઝામ્પલ this. So how can we find
5 રેશનલ નંબર્સ બિટવીન ધીસ ટુ. આપણને 5 ફાઇન્ડ કરવાના કીધા આ બેની વચ્ચેના, તો કેવી રીતે ફાઇન્ડ થાય? તો પહેલું કામ, ધ વેરી ફર્સ્ટ સ્ટેપ is to make denominator equal. We need to make denominator equal. તો denominator equal કેવી રીતે બને? By multiplying this with something. તો એકચ્યુઅલી શું યાદ રાખવાનું? 5 વાળાને 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરો અને 3 વાળાને કેટલાથી મલ્ટીપ્લાય કરો? 5. તો બંને નીચે સેમ થઈ જાય કે નહીં થઈ જાય? Yes, sir. સેમ થઈ જાય. તો આ નંબર કેવી રીતે ડિસાઈડ કર્યો તે મેં તમને શીખવાડ્યું. સો ડુ ધીસ થિંગ. આ વસ્તુ કરવાની કે મલ્ટીપ્લાય ધીસ, આને ઉપર નીચે 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાના અને આને 5 થી. આ ક્યારે કરવાનું? જ્યારે આપણે ડિનોમિનેટર ઇક્વલ કરવાના હોય તો. હવે ચેક કર, આ નંબર કયો થઈ જશે? 3 3 9. આ ઉપર ચેક કર, 3 3 9 ઉપર અને નીચે કેટલા થશે? 5 3 15. 15. Same way here, 2 5 10. અને અહીંયા 15. હવે નીચે સેમ થઈ ગયા કે નહીં? હવે Yes, sir. ઓકે. હવે આપણે કેટલા નંબર જોઈએ છે? હાઉ મેની નંબર્સ ડુ વી વોન્ટ? 5. તો 5 નંબર જોઈતા હોય તો કેટલા મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે? n + 1. 5 + 1 કેટલા થાય? 6. હવે 6 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. પહેલા આપણે મલ્ટીપ્લાય કર્યા, આ કેમ મલ્ટીપ્લાય કર્યા? નીચેનો ડિનોમિનેટર ઇક્વલ કરવા માટે. હવે એક વખત ઇક્વલ થઈ જાય તો પછી હવે કેટલાથી મલ્ટીપ્લાય કરવાના? 6. નાવ યુ મલ્ટીપ્લાય ધીસ બાય 6. તો અહીંયા પણ 6/6. હિયર ઓલસો ઇટ ઇઝ 6/6. કેટલા થશે? 9 6 અને નીચે 15 6 90. હવે આ બેની વચ્ચે બિટવીન ધીસ ટુ નંબર્સ આપણને 5 લખવાના કીધા છે. 5 નંબર, વી વોન્ટ 5 નંબર્સ બિટવીન ધીસ ટુ. 1 2 3 4 and 5. 5 નંબર બધામાં નીચે 90 લખવાના કેમ કે 90 કોમન છે. હવે ઉપર બિટવીન 54 and 60 બિટવીન ધીસ ટુ નંબર કયા કયા આવશે? બોલો. 55. Yes, 55. Go ahead. 56. 57. 58. 59. Yes, this is your answer. This is your answer. તો આમાં બે સ્ટેપ કરવાના. 2 steps needs to be done. Step number 1, make the denominator equal. જો જુદા જુદા હોય તો જ આ કરવાનું સ્ટેપ નંબર 1. નહીં તો પછી ડાયરેક્ટલી કરવાનું કયું? સ્ટેપ નંબર 2. સ્ટેપ નંબર 2 માં શું કરવાનું હોય? n + 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. રિમેમ્બર ધીસ થિંગ, n + 1. સપોઝ કે આની વચ્ચે 5 ફાઇન્ડ કરવાના કીધા, 6 કીધેલા હોતે તો આપણે 7/7 મલ્ટીપ્લાય કરતે. 8 આપેલા હોય તો આપણે 9/9 મલ્ટીપ્લાય કરતે. સમજ પડી બચ્ચાઓ? Yes, sir. આ ખાસ યાદ રાખવાનું, સાનાથી મલ્ટીપ્લાય. તો 2 મેથડ્સ આર ધેર. કેવી રીતના કરવાનું તે મેં તમને ઓલરેડી શીખવાડી દીધું. સો આઈ થિંક હવે સમજ પડી ગઈ હશે. So yaad rakjo, these kinds of sums are very very important. This is surely going to be asked. બે ટાઈપના સમ આવે, ડિનોમિનેટર ઇક્વલ હોય તેવા આવે અને ડિનોમિનેટર નોટ ઇક્વલ હોય તેવા પણ આવે. એન્ડ these kinds of sums are also there કે જેમાં ડિનોમિનેટર જ નથી. if there is no denominator તો એમ સમજો કે બંનેની નીચે કેટલા છે? 1. 1. એટલે ડાયરેક્ટ કરવાનું. પછી તો ડાયરેક્ટ કેવી રીતે કરાય? અહીંયા કેટલા ફાઇન્ડ કરવાના કીધા છે? 6. 6. તો 6 છે તો કેટલાથી મલ્ટીપ્લાય કરવાના ઉપર નીચે? 6 + 1 કેટલા થાય? 7. તો ઉપર નીચે 7 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાના. કેમ ભૂલી જાય પાછા? So this will become 7 3 21/7 and this will become 7 4 28/7. Now how many numbers do we need? 6. 1 2 3 4 5 6. બધાની નીચે the denominator will always be 7. but numerator अलग अलग आएगा. क्या आएगा इन दोनों के बीच में? 22 23 24 25 26 and 27.
जिसमें कट होता है करने का, देखो ये वाला है, इसमें कट होगा। कैसे कट होगा? क्योंकि 7 4 जा, तो यहाँ पर ये सिर्फ 4 आएगा। ये भी कट होगा 7, सॉरी नहीं ये नहीं होगा। जहां पर भी कट होता है उसको करने का, वरना नहीं करने का। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका आंसर। अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। दिस इज योर आंसर। तो बोला n+1 वाली मेथड आवर से बधाने। Yes, sir. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड मेथड। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है Yes, तो बस sir. डायरेक्ट ये वाला करो। स्टेप नंबर 2 ही करना है, सिर्फ स्टेप नंबर 2 करना। लेकिन अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो पहले आप लोग स्टेप नंबर 1 करो और उसके बाद में 2 करो। कौन सा 1 है कौन सा 2 है आप वापस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। जब भी आप करो तो देखना, ठीक है। અત્યારે વિડિયો મેં ઓપન રાખેલા છે, પછી હું વિડિયો ક્લોઝ કરી દઈશ, બધા નહીં જોઈ શકે અત્યારે। આઈ હેવ જસ્ટ કેપ્ટ ઇટ ઓપન ફોર ઓલ કે તમે રિવિઝન કરી શકે એટલા માટે। પછી હું પ્રાઇવેટ કરી દઈશ તો બધાને નહીં દેખાશે, એટલે કોઈને મફતમાં મળી જાય એવું નહીં ચાલે। ચલો ફોર્થ જુઓ। Now state whether the following statements are true or false. True છે કે false છે કહેવાનું। Every number, અહીંયા છે, જો તમને નહીં દેખાતો તો બતાવું। Every number, every rational number is a whole number. Is it true? Every False. natural number is a whole number. False. Natural number માં તો 1 2 3 4 5 6 આ બધા આવે। શું આ બધા whole number છે? Yes. છે તો Yes, પછી આ તો sir. true થયું ને। True. This is true. Every natural number is a whole number. But जो reverse पूछे कि is every whole number a natural number, तो ना पाड़वानी, it is false. Why is it false? क्योंकि whole number में तो 0 आवे ने 0 is not a natural number. Natural number nothing. Okay. Next શું કહે છે? Every integer is a whole number. True or false? Every integer False. is a whole number. True or false? False. यार તમે લોકો ગાંડા છે। નેચરલ નંબરમાં કોણ આવે તે દિવસે ચોખ્ખું ડિટેલમાં સમજાવ્યું, તો બી તમે લોકો ધ્યાન નહીં આપે। This is natural number, this is whole number, and integer નંબરમાં કોણ આવે? All negative, 0 1 2 3 dot dot dot। હવે મેં એમ કીધું કે all integers are whole number. True or false? ગુચવાઈ ગયા ને? જો એમ પૂછેલું હોય કે all whole numbers are integer, then it is true. But if all integers are whole number, then it is false. કારણ કે આ જે negative number છે, these negative numbers are not found in whole number. તો મેં ખાલી ગુચવા માટે કૃષ્ણને ઉલ્લુ બનાવી। She was absolutely right. Her answer is true. False. Answer Sir, minus ના number whole number થોડી ના હોય। એટલે તમે ના પાડી ફોલ્સ છે દીકરા। તારો આન્સર Yes, રાઈટ છે। sir. એવું તારી સાથે મસ્તી કરી। તારો તુએ જે આન્સર આપ્યો ફોલ્સ, that answer is true. એટલે your answer is right. કેમ? કેમ કે all integer numbers are not whole numbers. એ તો ચોખ્ખી વાત છે। Last question. Every rational number means q is a whole number. Every rational number is a whole number. True or false? Sir, false. False. આ રેશનલ નંબર હોય તે ક્યાંથી ક્યુ માં હોલ નંબર માં આવવાનું? 3/2 કેવી રીતે હોલ નંબર માં આવવાનું? તો આમાં કેવું આવશે? True, false, false. False. Okay. So this exercise is over. તો આ એક્સરસાઇઝ કરજો, તમે જાતે ટ્રાય કરજો, આરામથી આવડશે, કોઈ પ્રોબ્લેમ Yes, નથી, sir. નો ઇશ્યુ. You will be able to do this. Okay. Now next thing I would like to teach you is this. Okay, how to represent numbers on number line. If you want to represent any number on number lines, you can. Suppose number line નો આખો ટોપિક જ ચલાવી દઉં તમને। Suppose number line તો બધાને આવડે કે નહીં આવડે ડ્રો કરતા? Yes, sir. Yes, all of you must be able to draw a number line. So let me
write or draw this as my number line. So which number will come at the center of this line? 0. 0 will exactly be at the center. And afterwards, if I write numbers on the right hand side, those numbers will be Positive. positive numbers like 1, 2, 3, 4, 5. And if I move on left hand side, the numbers will be Negative. negative 1, 1, 2, 3, 4. So it will be -1, -2, -3, -4 likewise. This arrow represents that this line will go up to infinite. जियाज करे जियाज करे जियाज करे, ये कहीं पर भी रुकेगी नहीं. तो यहाँ पर अगर मेरे को नंबर दिखाने तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि ये वाले हो गए मेरे सारे नेचुरल नंबर्स. अगर इसके अंदर मैं 0 भी ऐड कर दूं तो ये सारे मेरे नंबर कैसे हो गए? होल नंबर. और अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दूं तो ये सारे नंबर कौन से हो जाएंगे? इंटीजर नंबर्स. क्या हो जाएंगे? इंटीजर नंबर्स. इंटीजर. अभी आपको मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, क्या मैं किसी रेशनल नंबर को, जो नंबर रेशियो के फॉर्म में है, तो जो नंबर रेशियो के फॉर्म में है उसे रेशनल नंबर बोलते हैं, क्या रेशनल नंबर को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या मैं इसमें? से फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि 3.5 मेरे को चाहिए, तो 3.5 नंबर लाइन पे आएंगे कहीं पर? यस. तो कहाँ आएगा? 3 और 4 के बीच में, बिटवीन 3 एंड 4. अगर इसके बीच में एग्जैक्टली मैं ये वाला लूं तो ये हो जाएगा 3.5. क्योंकि अगर इसको मैं जूम करूं, एक मिनट, अगर मैं इसको जूम करूं, ये 3 और 4 को जूम करूं, तो ये लाइन ऐसी कुछ बन जाएगी. ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी. ये रहा मेरा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा मेरा 4. तो ये हो गई जूम. मतलब ये जूम जिसके ऊपर हम लोग क्लास रहे वो जूम नहीं, ये लाइन मेरी जूम हो गई. देखो मैग्नीफाइड हो गई, ये बड़ी लाइन हो गई. ठीक है. अभी इसमें इस नंबर को क्या बोलेंगे? चलो आप बता सकते हो क्या? ये नंबर कौन सा आएगा? 3.1. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. ये बीच वाला आएगा 3.5, देन 3.6, 7, 8, 3.9. 3.9 के बाद में डायरेक्ट आ जाएगा 4. आई बात समझ में? तो अगर मेरे को 3.5 भी रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को पता चलना चाहिए कि 3.5 कहाँ पर आएगा. तो इट विल लाई बिटवीन 3 एंड 4. सिर्फ 3.5 ही नहीं, ये सारे नंबर 3.1 2 3 4 5 सारे नंबर इन दोनों के बीच में ही आएंगे. ठीक है. खबर पड़ी तुमने? यस सर. यस अपन एक क्वेश्चन है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. आपको पूछेंगे कि रिप्रेजेंट एनी नंबर बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड. रुको मैं दिखाता हूँ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड. पता नहीं आप लोग को स्कूल में पिला लोगों ने चालू नहीं थी वो सर, जो गुजरात बोर्ड वाला ने, बाकी लोगों ने तो चालू થઈ ગઈ वो सर. तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन नंबर लाइन ये रहा, ये रहा. यहाँ पर ये 2.6 और 2.7 के बीच में ये रहा. उसको फिर से जूम करते हैं. तो ऐसे करते करते हम लोग सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाम क्या है इस मेथड का? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. क्या बोलते हैं इसको? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में लेकिन बाद में दिखाऊंगा. पहले हम लोग दिखाएंगे क्या मैं किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? रेशनल को तो कर सकते हैं, ये सारे नंबर रेशनल है, रेशनल को तो कर सकते हैं. लेकिन ऐसे नंबर, ये देखो √2 या फिर √3, मैंने सिखाया था आप लोग को. क्या सिखाया था? कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, अगर किसी भी प्राइम नंबर का मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो वो स्क्वायर रूट वाला प्राइम नंबर आएगा, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. मतलब वो रेशियो के फॉर्म में हम लोग कंप्लीटली उसको नहीं लिख सकते कभी भी. इरेशनल नंबर उसको कहते हैं. तो क्या ऐसे रेशनल नंबर हम लोग नंबर लाइन पे लिख सकते हैं? आंसर इज यस.
આપણે લખી શકાય. देखो मैं लिखा करके दिखाता हूँ. मान लो मेरे को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है √2. मान लो मेरे को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है √2. तो मैं कैसे करूंगा √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन. ऐसे करनी है. इसके ऊपर यहाँ पर मैं लिखूंगा O. ठीक है, इसको मैं लिखूंगा O. दिस इज माय ओरिजिन. फिर यहाँ से मेरे को A लेना है, लेकिन कितने दूर तक लेना है, तो उसके लिए मैं स्केल बनाऊंगा. स्केल क्या स्केल लेना है आपको? आप कुछ भी ले सकते हो. मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. जब भी 5 सेंटीमीटर होंगे तो मेरा 1 यूनिट ही होगा सिर्फ. तो यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर लिया, लेकिन मैं लिखूंगा कितना लिखूंगा? 1 unit. 1 યુનિટ. 1. હવે અહીંયાથી પાછો અહીંયા સેટ સ્ક્વેર મૂકવાનું. क्या आपने देखा है सेट स्क्वेर? Yes, sir. सेट स्क्वेर જે આવે ને તેને અહીંયા મૂકવાનું. અહીંયાથી એની સાથે એग्जैक्टली पैरेलल एंड ओवर हियर ऐसे रखना है आपको. सेट स्क्वेर ऐसा टूल आता है आपके कंपास बॉक्स में, उसको यहाँ पर रखना है और यहाँ पर रख के इसको एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना है. जब भी मैं 5 सेंटीमीटर लेता हूँ तो आपको समझना होगा कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा. 5 सेंटीमीटर मतलब वो होगा ये 1 यूनिट. सिर्फ 1 यूनिट होगा ये वाला भी, क्योंकि हमने स्केल क्या लिया है. जब भी 5 सेंटीमीटर आता है उसको हम लोग 1 यूनिट कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो एग्जैक्टली ये 90 डिग्री हो जाए. आई वांट दिस टू बी 90 डिग्री एग्जैक्टली. यहाँ पर आई बात समझ में? Yes. अभी मेरे को क्या करना है? व्हाट शुड आई डू नाउ? अभी अगर ये मैं ज्वाइन करता हूं यहाँ पर, सॉरी, ये अगर मैं ज्वाइन करता हूं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट? तो उसको करने के लिए हमारे पास एक थियरम है, जिस थियरम का नाम है, क्या नाम है थियरम? पाइथागोरस थियरम. पता है आपको इसके बारे में? पाइथागोरस थियरम के बारे में નામ સાંભળેલું? Yes, sir. પાયથાગોરસ થિયરમ નામ સાંભળેલું હોય તો in a right angle triangle, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऐसी चीज, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर हो गया, आप देख सकते हो ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो सबसे लंबी साइड है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस. इस साइड को बोलेंगे हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस का अगर स्क्वायर में ले लूं, इफ आई टेक हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज OB स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड. अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड. इन दोनों साइड का स्क्वायर रहेगा. ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिए. आपको ध्यान से ये चीज अपने दिमाग के अंदर प्रिंट कर देनी है. दिस इज माय पाइथागोरस थ्योरम. अभी मैं क्या करूंगा? इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा. लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू. OA कितना है? OA की वैल्यू कितनी? 1. AB की वैल्यू कितनी यहाँ पर? AB ये पूरा 1. ये भी 1. तो यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2. अगर OB स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो OB अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इफ आई वांट ए OB, हमारी पास है 600 OB स्क्वायर, तो स्क्वायर ने गायब करवा माटे आई विल हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेता हूं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे. तो OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2. कितनी आएगी? √2. तो आ OB ની વેલ્યુ થઈ ગઈ મારી √2. બસ તમારે √2 તો જોઈતા હતા. आई वांटेड √2.
मेरे को √2 ही तो चाहिए, लेकिन ये √2 किसके ऊपर चाहिए? √2 क्या लगा हुआ हो तुम्हारे? ये मेरे को चाहिए ऑन नंबर लाइन। मुझे इस नंबर लाइन के ऊपर चाहिए, इस नंबर लाइन के ऊपर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अभी इस पॉइंट को, ये वाली जो मेरी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी जो लेंथ है, ये लेंथ की वैल्यू √2 है, लेकिन इस लेंथ को मेरे को नीचे लाना है। तो व्हाट विल आई यूज? फॉर दैट आई विल यूज माय राउंडर, या फिर पेयर ऑफ कंपास जिसे बोलते हैं, वर्तुल आपने कही है देसी भाषा में। सो आई विल हैव टू यूज माय राउंडर और कंपास। कहाँ कहाँ पर रखना है? एक ये जो पॉइंटेड पार्ट है इसको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर, और ये पेंसिल वाला पार्ट है उसको एक्सटेंड करना है। कहाँ तक एक्सटेंड करना है? यहाँ तक। तो ये पूरी इन दोनों के बीच में लेंथ कितनी आनी चाहिए? √2 जितनी लेंथ होनी चाहिए। फिर यहाँ पर पॉइंट से, यहाँ से पेंसिल से मैं इसको नीचे ले जाऊंगा। आई विल ब्रिंग दिस पॉइंट राइट डाउन ओवर हियर। अब इतना एक आर्क पढ़वाना ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये वाला जो पॉइंट आया नीचे, जिसको हम अगर सी बोले, सॉरी सी, बिकॉज बी तो ऑलरेडी है, सी बोले, तो ये ओ से लेके सी तक का पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा? √2। तो आपको बोला था कि रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन पे लाइए। तो करना क्या होगा आप देख लीजिए, फिर से एक बार बता देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन बना दीजिए। आफ्टर मेकिंग दिस लाइन, एक यूनिट लेना। एक यूनिट मतलब कितना? 3 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर को हम लोग 1 यूनिट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 सेंटीमीटर लिया, फिर सेट स्क्वायर का यूज करके ये ऊपर 90 डिग्री पर फिर से 5 सेंटीमीटर लिया, ताकि ये वाला भी मेरा 1 यूनिट हो जाए। आई वॉन्ट दिस ऑल्सो टू बी 1 यूनिट, इसको भी मेरे को 1 यूनिट ही लेना है। ठीक है, 1 लेने के बाद अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो इसकी लेंथ कितनी होगी? वो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक थ्योरम है, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया मेरा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? जो लंबी साइड है, सबसे लंबी साइड, इसका स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब एक पिक्चर में देखो, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। आई बात समझ में? यस सर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और वो मिल जाएगा आपको √2। एक बार √2 मिल जाए तो उसको नीचे गिराने के लिए आई विल हैव टू यूज द पेयर ऑफ कंपास, या फिर उसको बोलते हैं वर्तुल। आनो यूज करवानो, पॉइंटर ने ओ पासे रखवानो, एंड पेंसिल को यहाँ तक खींचना है आपको। तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा √2, और फिर उस पेंसिल से नीचे की ओर हमको ये नंबर को लाना है, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो ये हो गई मेरी नंबर लाइन विच कंटेन्स अ पॉइंट √2। एवी नंबर लाइन થઈ ગઈ કે જેના પર મેં શું रिप्रेजेंट કરેલું તો √2। तो फास्ट फॉरवर्ड में एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अ लाइन ओ, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ले लो, लेकिन 5 सेंटीमीटर को बोलना है हमको सिर्फ 1 यूनिट। फिर सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके हमको यहाँ पर 90 डिग्री ऊपर जाना है, और कितना जाना है, कितना दूर? तो फिर से जाना है हमको 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1 यूनिट। 1 यूनिट। अभी इन दोनों को मेरे को ज्वाइन करना, आई विल ज्वाइन दिस टू। तो ये कितना होगा? इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मेरे को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लिखूं, अगर यहाँ पर 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, दोनों का स्क्वायर करूं, फिर भी यहाँ पर आएगा 2। अगर OB स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो OB कितना होगा? √2। तो ये हो गया मेरा, मैं दोबारा कर रहा हूँ, सारी चीज में रिपीट कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा √2, ये हो गया मेरा √2। ये अभी √2 का नीचे गिराना है, तो यहाँ पर सेंटर रख के यूजिंग पेयर ऑफ कंपास इसको नीचे गिराना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मेरा थर्ड पॉइंट, और ये जो सी है वो रिप्रेजेंट करेगा √2 को। तो ये हो गई मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। क्या आप लोग √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अभी? यस सर। ये टेक्स्ट बुक में बताया गया, देखो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर बताई है। यहाँ 0 से लेके A 1 है, यहाँ पर 0 से लेके A, फिर ऊपर मेरे को 90 डिग्री पे जाना है 1 यहाँ पर, और ये 1, ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। दिस विल बिकम √2।
और उस रूट टू को फिर से मेरे को डॉट 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 यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो, इसको नीचे गिराया यहाँ से लेके, तो ये P वाला जो पॉइंट है वो रूट टू को रिप्रेजेंट करेगा। आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी होगी, OB इज इक्वल टू ये वाला होगा, you'll have to do this। आप ये कर सकते हो, जैसे हम लोग ने रूट टू किया वैसे हम रूट थ्री भी कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग रूट 5, रूट 7 बहुत सारे नंबर्स को कर सकते हैं, लेकिन वो हम करेंगे कल। ये रूट 5 को भी मैं करके दिखाऊंगा, दो मेथड है, दो अलग अलग मेथड्स है, लेकिन अगले सेशन में मैं इसको करवाऊंगा। अभी तक के लिए इतना काफी है, हम लोग थोड़ा धीरे जाएंगे, अभी शुरुआत है, इसलिए आप रूट 2 का करना, ट्राई करना रूट 2 का आपसे होता है कि नहीं होता है, ठीक है? यस सर। ओके, Sir, bye. बाय फॉर नाउ। बाय सर।